Good evening, sir. Good evening. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sorry, sir. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon. Okay. GPA. Good morning, sir. Good afternoon. Okay, so in the last class we have started environmental introduction to environmental studies. Okay. Now some students ask why we are studying environmental studies being a BBA student. No, there is inquisitiveness in some of you why we are studying this environmental studies paper, because we know that you all are going to be the future citizens of our country. You are going to work in different industries, or you are going to set up some new industry or some entrepreneurship, or some you can start some startup. uh, and our country's future depends on the youth. So it is easy to train the young individuals than to train and aware old individuals. So there is a your environmental activist and a lawyer, great lawyer by the name MC Mehta, and he had filed a PIL, public interest litigation, in the Supreme Court, so that Supreme Court can order our uh, your central government or to the government to start this environmental study paper as a compulsory paper in all the UG courses. So PIL, after this PIL, Honorable Supreme Court had asked the UGC and all the other such boards to introduce your this um, environmental studies paper at the UG level, and you get marks on this paper, and it is an important or compulsory paper. What is the main motto behind this paper? So that the general awareness level is increased. Once you are aware about your action, how your action is going to affect our environment, how it is going to affect other living organisms, you would abstain yourself from performing such actions. Now, so let's start. Today I'm going to start the first module, that is environmental studies, that is environmental pollution. Let's first discuss the syllabus. Let's discuss the syllabus first. Your paper is of 2 credits. 1 minute. So many times. Well, let's start with the first module. I would discuss about the syllabus in the next class. So, how do we define pollution? Can anyone define pollution? What is pollution?
Can anyone define pollution? What is pollution? What do you mean by the term pollution? You must have heard this word. Anyone? What is pollution? Abhay Tirke. Abhay, define what is pollution. How do you define the term pollution? Abhay सर Tirke. मे बी हम कह सकते हैं कि impurities which are mixed with air, water or something else is called pollution. Okay, so right to some extent. So How pollution is any undesirable change in physical, chemical, or biological characteristics of air, land, water, or soil. Generally, what is pollution? Pollution is actually contamination of our air, land, or water with some obnoxious substance or with some unwanted substance. Now, or the simple definition that was given in NCERT about environmental pollution is environmental pollution is the physical, any undesirable change in the physical, chemical, or biological characteristics of our environment. Any undesirable change in the physical, chemical, or biological characteristics of our environment is termed as environmental pollution. अब जैसे हमारा environment है तो वो बेसिक डिफरेंट चीजों से मिलके बना है ना, जैसे आपने सुना होगा जो एक्वेटिक environment है उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जो लैंड वाला environment है उसको एज ए होल हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो एयर वाला environment है, जो एयर का कंपोनेंट है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. और वैसा पोर्शन जहां पे ये तीनों आपके स्फीयर्स कंबाइन करते हैं और जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना बायोस्फीयर बोलते हैं. अब जो लाइफ है ये तीनों स्फीयर्स पे डिपेंडेंट है, एटमॉस्फेयर पे, हाइड्रोस्फीयर पे, लिथोस्फीयर पे. लेकिन ड्यू टू सम नेचुरल रीजंस और ड्यू टू सम ह्यूमन फैक्टर्स और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या होता है कि ये जो नेचुरल हमारे एलिमेंट्स है वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो पॉल्यूट हो जाते हैं, वो डिग्रेड होने लगते हैं. रीजन क्या है कि कुछ उसमें मटेरियल्स ऐड हो जाते हैं. अब ये जो मटेरियल है जिनको हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, इनका सोर्स नेचुरल भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है. जैसे मान लो कि वाटर है, पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स आपने छोटे क्लासेस से पढ़ा है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, इवन अब माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन भी है, फूड पॉल्यूशन भी है, लाइट पॉल्यूशन भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन अब हमने आइडेंटिफाई किए हैं जनरली. लेकिन ऐसे एक ब्रॉड टर्म में वाटर पॉल्यूशन क्या है, जब वाटर कंटेमिनेट हो जाए किसी अनवांटेड मटेरियल से, किसी टॉक्सिक मटेरियल से, किसी वैसे केमिकल से जो कि हार्मफुल हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या प्लांट्स के लिए, अदर लाइफ फॉर्म्स के लिए, तो उस टाइप के कंटेमिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन बोलेंगे. अब इसी तरीके से एयर में भी क्या है कि अगर कोई कंटेमिनेंट हम ऐड हो जाता है, कोई पॉल्यूटेंट ऐड हो जाता है, जैसे मान लो कि हमने फॉसिल फ्यूल बर्न किया तो उससे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एयर में ऐड होते हैं, उससे क्या होगा, हमारा एयर पॉल्यूशन होगा. जो हमारा नेचुरल एयर था, जो प्योर एयर था, वो कंटेमिनेट हो चुका है क्योंकि कंटेमिनेंट्स ऐड हो चुके हैं, जो कि आपके डिफरेंट गैसेस हैं. गैसियस कंटेमिनेंट्स भी हो सकते हैं या वो आपका सॉलिड फॉर्म के भी कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं. जैसे आपका जो डस्ट पार्टिकल है, सूट पार्टिकल है, पॉलन ग्रेन्स है, बैक्टीरिया फंगल स्पोर्स है, जो एयर में प्रेजेंट है, वो भी किस तरह एक्ट करते हैं, वो एक सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं. इसी तरीके से आपका लिक्विड या वेपर फॉर्म में भी पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि आपने नाम सुना होगा मे बी सॉल्वेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, पेंट में सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं, या फिर आपने सुना ना ये नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs, है ना. इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ये पेंट और वार्निश जो इंडस्ट्री है उसमें इसको यूज़ किया जाता है. और ये जो गैस, ये जो आपके केमिकल्स है ना, ये वोलेटाइल होते हैं, ये एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वेपराइज कर जाते हैं. जैसे पेट्रोल भी है हमारा ना, वो भी क्या है, वोलेटाइल नेचर का कंपाउंड है. अगर आप उसको ओपन में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एयर में इवेपोरेट कर जाएगा. जैसे कैम्फर है, वो भी क्या है, एक टाइप का वोलेटाइल मटेरियल. अगर आप उसको कहीं पे रख दीजिएगा नॉर्मल एयर में, एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा. तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड. और ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो आपके अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं,
ये फंक्शन करते हैं आपके लिक्विड या वेपर एयर पॉल्यूटेंट, वेपर फॉर्म में ये एयर पॉल्यूटेंट है ना। अब वैसा मटेरियल जो पॉल्यूशन कॉज करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट बोलेंगे। तो एक सिंपल डिफिनेशन, जो पहला डिफिनेशन था उसी से हम पॉल्यूटेंट का भी डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे एग्जाम में जनरली अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, जैसे हमने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का डिफिनेशन देखा कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज योर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द सब्सटेंसेस, इसी में ऐड कर सकते हैं एक लाइन, एंड द सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग आउट दीज अनडिजायरेबल चेंज आर टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। जिन सब्सटेंसेस के कारण ये अनडिजायरेबल चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट बोलेंगे। अब ब्रॉडली हम लोग को कितने टाइप का पॉल्यूशन पढ़ना है ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। पहले एक मिनट, स्लाइड शो। तो एक यहाँ पे डिफिनेशन देखते हैं, इसमें क्या कैसे डिफाइन किया गया है पॉल्यूशन को। व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस कंटेमिनेट द एनवायरनमेंट इट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस से हमारा एनवायरनमेंट कंटेमिनेट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज एनी अनडिजायरेबल चेंज in the physical, chemical or biological characteristics of any component of the environment which can harm to life and property। ये भी definition हम लोग यूज कर सकते हैं। अब पॉल्यूशन जिन पे हमको ब्रॉडली फोकस करना आपके इस मॉड्यूल में, वो है आपका एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मैरीन पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ठीक है। अब वाटर और मैरीन पॉल्यूशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, जो हम नॉर्मल वाटर पॉल्यूशन बात करते हैं नॉर्मल टर्म्स में, उसका मतलब है वो फ्रेश वाटर सोर्सेस का हम बात कर रहे हैं, जो सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्मली हम उसको वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जो पॉल्यूशन हमारे ओशंस में होता है या सीज में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैरीन पॉल्यूशन बोलते हैं। अब इन सारे का डिफिनेशन हम लोग पहले वाले डिफिनेशन से लिख सकते हैं कुछ पॉल्यूशन का। जैसे अगर हमें एग्जाम में आ जाता है एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन, है ना, या मैरीन पॉल्यूशन, तो जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर is termed as air pollution and the substances that bring out these undesirable changes are termed as air pollutants। इसी तरीके से अगर वाटर पॉल्यूशन आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, any undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of water is termed as water pollution and the substances that bring out these undesirable changes are termed as water pollutants। थर्ड है आपका, जैसे सॉइल पॉल्यूशन अगर आता है तो इसमें हम लिख सकते हैं एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज सॉइल पॉल्यूशन एंड द सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग आउट दिस अनडिजायरेबल चेंज आर टर्म्ड एज सॉइल पॉल्यूटेंट्स। तो ये तीन जो बेसिक है इसका डिफिनेशन तो हम अपने फर्स्ट डिफिनेशन से लिख सकते हैं। अब पॉल्यूशन जो है ना, पॉल्यूशन में पॉल्यूशन कॉज कौन कर रहा है, आपका पॉल्यूटेंट्स कॉज कर रहा है। और जो सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के वो दो टाइप के सोर्सेज हैं, इसको नोट डाउन कर लो, मे बी ये स्लाइड में ना हो, पेन मटेरियल, राइटिंग मटेरियल रखा है तो नोट डाउन कर लो। एक लिखो ऊपर में पॉल्यूटेंट्स और उसको दो टाइप से कैटेगराइज करो एरो बना के, है ना, दो एरो बनाओ और जहां पे आपने पॉल्यूटेंट्स लिखा उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करो। एक कैटेगरी होगा आपका नेचुरल सोर्स, ऊपर में जहां पॉल्यूटेंट लिखा था ना वहां पे लिख लो, पॉल्यूटेंट के साथ एक और वर्ड लिख लो, पॉल्यूटेंट सोर्सेज। जो पॉल्यूटेंट जो हैं या पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल सोर्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका मैनमेड या एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। जहां आपने पॉल्यूशन लिखा है, पॉल्यूटेंट लिखा है, ब्रैकेट में सोर्सेज लिख के आप उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो, एक जगह लिख लो नेचुरल सोर्सेज और दूसरे जगह लिख लो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, ANTHROPOGENIC, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। अब जहां आपने नेचुरल सोर्सेज लिखा है उसमें
हम कुछ पॉल्यूशन के सोर्सेज जो है नेचुरल, उनके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। तो आप सोच के बताओ क्या कौन सा ऐसा नेचुरल सोर्स होगा जिससे पॉल्यूशन होता है? कोई बता सकता है? जैसे एक मैं बताता हूं, वो है आपका वॉल्केनिक इरप्शन। पहला लिख लो, पहला नेचुरल सोर्स क्या हो जाएगा? वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो ह्यूज अमाउंट में वो गैसेस रिलीज करते हैं जो कि एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें आपका ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड और डिफरेंट एसिड के वेपर्स और भी बहुत सारे सूट पार्टिकल्स, है ना, हेवी मेटल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो एक नेचुरल सोर्स हमारा क्या हो गया? पहला वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा उस समय एयर पॉल्यूशन कॉज होगा, और नेचुरल सोर्स है ये हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। ये ह्यूमन फैक्टर के कारण नहीं होता है। ये किस कारण होता है? वो प्लेट टेक्टोनिक्स और जो हमारे अर्थ का मेकअप है, जो कोर है, मैग्मा है, मेंटल है, वो उसके कारण वो रिलीज होता है। जहां पे वीकर आपका क्रस्ट होगा, लिथोस्फीयर जहां पे वीक होगा, वहां से वो मैग्मा रिलीज होगा और वॉल्केनिक इरप्शन होगा। तो जो वॉल्केनिक इरप्शन है ये क्या करता है? ह्यूज क्वांटिटीज में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है, सल्फर कंपाउंड रिलीज करता है, और इसके कारण एसिड रेन भी हो सकता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर क्या कॉज करते हैं? एसिड रेन। एसिड रेन जो है वो दो गैसेस कॉज करती है मेनली, एक है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और दूसरा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। ये दोनों आपस में कंबाइन, ये दोनों वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके अपर एटमॉस्फेयर में ये दो टाइप के एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और जब भी प्रेसिपिटेशन होता है उसके साथ वो मिक्स करके अर्थ पे फॉल करते हैं, और उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। एसिड, किसी रेन को एसिड रेन क्लासिफाई करने के लिए एक कंडीशन है कि एसिड रेन जो होता है, जो रेनफॉल है, अगर उसका पीएच 5.6 से बिलो है तब हम उसको एसिड रेन बोलेंगे। अगर 5.6 से अबव है तो उसे हम एसिड रेन नहीं बोलेंगे। अब जो एसिड रेन है जरूरी नहीं है कि वो रेन के ही फॉर्म में हो, है ना। एसिड रेन किसी भी फॉर्म के प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में आ सकता है। वो रेनफॉल के फॉर्म में भी हो सकता है, वो ड्रिजल के फॉर्म में भी हो सकता है, वो हेल स्टॉर्म के फॉर्म में भी हो सकता है, या वो स्नोफॉल के भी फॉर्म में हो सकता है। जो नॉर्मल हम लोग रेन देखते हैं जिसमें एक पार्टिकुलर साइज का हम लोग रेन ड्रॉप्स देखते हैं, उसको हम लोग रेन बोलते हैं। लेकिन कई बार आप ऐसा रेनफॉल देखोगे जिसमें वाटर जो है वो बहुत, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं ना, और एक लगातार काफी दिनों तक ये इस टाइप का रेनफॉल होता है, बहुत छोटे छोटे ड्रॉप्स की रेनफॉल होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रीजल बोलते हैं। तो ड्रीजल भी जो है उसके थ्रू भी एसिड का डिपोजिशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ पे हो सकता है। तीसरा, जैसे मान लीजिए कोई कोल्ड एरिया है, यूरोपियन कंट्रीज में है, या हम लोग ग्लेशियर पे या हायर एल्टीट्यूड में है, तो वहां पे एसिड रेन किस फॉर्म में अर्थ पे आएगा? फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। जो स्नो फ्लेक्स है उसमें वो एसिड प्रेजेंट होंगे। और जब हेल स्टॉर्म होता है, जब हम लोग देखते हैं कि आइस के क्यूब्स, बड़े बड़े साइज के आइस स्टॉर्म के साथ हमारे अर्थ पे फॉल करते हैं, तो उसको हम लोग हेल स्टॉर्म बोलते हैं। तो एसिड रेन में वो ऐड होके, रेनफॉल में हेल स्टॉर्म में ऐड होके एसिड वापस हमारे अर्थ पे आ जाती है। ठीक है, तो मेनली मैं बात कर रहा था सोर्सेज। तो पहला सोर्स हो गया आपका नेचुरल सोर्स, वॉल्केनिक इरप्शन। सेकंड सोर्सेज क्या हो सकता है? मार्शी एरियाज, वैसा एरिया जहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा हो ऑर्गेनिक मैटर का, जो दलदल वाला एरिया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वहां से आपका मतलब मीथेन गैस रिलीज करता है, और मीथेन गैस क्या है? एक एयर पॉल्यूटेंट है। तो आप उसमें सेकंड क्या लिख सकते हो? मार्शी एरियाज। या पीट बॉक्स, PEAT, पीट बॉक्स। पीट का नाम सुना आपने? पीट क्या होता है कुमारी ज्योत्सना? पीट क्या होता है? PEAT, पीट, नाम सुना है पीट का? नो सर। पीट क्या है? एक प्रिकर्सर है कोल का, है ना। जनरली अगर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा आपने कि कोल का 4 फॉर्म होता है ऐसे। हम लोग बोलते हैं पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है ना। तो पीट जो है वो असल में वो कोल नहीं है, वो क्या है? वो है प्रिकर्सर कोल का, है ना। जैसे जो पार्शियली डिकम्पोज आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा, वुडी मटेरियल होगा, उसको जनरली हम लोग पीट बोलते हैं। और जहाँ पे ये पीट मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे ये बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैसा जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है काफी ज्यादा, जैसे कोई सबमर्ज फॉरेस्ट का एरिया है, तो वो जनरली पीट बॉग में डेवलप हो जाता है। और ये पीट को अगर हम काफी ईयर्स के लिए अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कंडीशन में रखेंगे, तो ये फिर किस में चेंज हो जाएगा? आपके कोल में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो पीट वाला एरिया है या जो मार्शी एरिया है, जो पीट बॉक्स है, वो भी क्या है? वो आपके सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन है,
क्योंकि वो मीथेन गैस और अदर गैसेस जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उसको वो रिलीज करती हैं। इसी तरीके से जो रिवर्स है, कई बार रिवर्स जो है वो क्या करती है, बैंक इरोजन करती है। तो इसमें थर्ड सोर्स लिख सकते हैं हम लोग बैंक इरोजन। थर्ड सोर्स में लिख लो बैंक इरोजन। जैसे जब रिवर फ्लो करती है तो आप देखोगे कि न्यूज़पेपर में आता है कि नदी ने क्या किया, इतना जमीन काट दिया, है ना, कि इतना जो लैंड है वो रिवर ने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। जब रिवर फ्लो करेगी और अगर आपके रिवर बैंक पे आपने प्रॉपर प्लांटेशन नहीं रखा है या आपने कुछ वैसा वॉल नहीं बना रखा है जिससे कि इरोजन आप चेक कर सके, आपने कोई इरोजन को चेक करने के लिए मेजर्स नहीं रखे हैं, तो जो भी सॉइल होगा या जो भी वहां लैंड मास होगा उसको रिवर क्या कर जाएगी, इनगल्फ कर जाएगी, सारे सॉइल को वो इरोड कर लेगी और जो आपका लैंड मास था वो रिवर के अंदर चला जाएगा, है ना। तो जनरली इरोजन से, बैंक इरोजन से क्यों वाटर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिवर बैंक के आसपास क्या होता है कि आपके मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं या ओर्स प्रेजेंट होते हैं, और कई बार जो ये ओर्स हैं उसमें आपके हैवी मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके टॉक्सिक मिनरल प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। और जब ये रिवर इरोजन कॉज करेगी तो ये जो हैवी मेटल हैं या जो टॉक्सिक मेटल्स हैं वो जाके किस में ऐड हो जाएंगे, हमारे रिवर में, वाटर में, रिवर वाटर में। और इस वाटर को जब कोई पर्सन, या हम लोग जनरली डिपेंडेंट है रिवर वाटर पे ना, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए या अदर पर्पसेस के लिए, अगर इस वाटर को हम यूज करेंगे इरिगेट करने के लिए या ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, तो ये जितने हैवी मेटल्स हैं या जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं ये हमारे बॉडी में इंटर कर जाएंगे और उसके कारण वो डिजीज प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो इरोजन है, जो रिवर का इरोजन है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना। तो उसके कारण ये जो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, आपका नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन में। इसी तरीके से जो आपके एनिमल्स हैं, जैसे हमारे जो डेयरी एनिमल्स हैं, जो बड़े हर्बीवोर एनिमल्स हैं, तो वो जब कर्डलिंग करते हैं तो इनॉर्मस अमाउंट में वो मीथेन रिलीज करते हैं, है ना। तो अब वो मीथेन रिलीज करे वो तो नेचुरल प्रोसेस है, तो वो भी किस में आएंगे, नेचुरल सोर्सेज में ही आएंगे। तो कुछ जो सोर्सेज हैं वो नेचुरल सोर्सेज है, और भी कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि एयर पॉल्यूटेंट में आपको मैंने बताया कि सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट होता है, आपने नाम सुना होगा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, या एसपीएम का नाम सुना होगा। एसपीएम, आरएसपीएम का नाम सुना है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और आरएसपीएम रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अभी जो हम लोग ने मास्क यूज किया कोरोना के टाइम में, तो N95 मास्क हम यूज कर रहे थे, है ना। N95 मास्क का बहुत ज्यादा डिमांड था। कोरोना से पहले हम इस मास्क का क्यों यूज करते थे, अगर किसी सिटी में ज्यादा पॉल्यूशन है या आप वैसी जगह में काम कर रहे हो जहां एयर पॉल्यूशन है, तो हम ये N95 मास्क का यूज करते थे। ये पॉल्यूशन को चेक करने वाले मास्क थे। तो किस टाइप के पॉल्यूशन को ये चेक करते थे, डस्ट पार्टिकल या जो एसपीएम है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, उनके पॉल्यूशन को चेक करने वाले ये मास्क थे। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या है, सस्पेंडेड से समझ आ रहा है कोई चीज जो सस्पेंडेड है एयर में। अब पार्टिकुलेट मैटर वैसे पार्टिकल्स हैं जो इनका साइज आपका 10 माइक्रोमीटर और 2.5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, जिनका जो साइज है, जो डायमीटर है, अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करेंगे तो उनका साइज जो है 2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में इनका साइज होगा। अब ये पार्टिकल्स क्योंकि बहुत स्मॉल साइज में है तो वो एयर में क्या करते हैं, ज्यादा देर सस्पेंड होते हैं या उनका रेसिस्टेंस टाइम क्या होता है, हाई होता है। अब जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ये नेचुरल भी हो सकते हैं या मैनमेड भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहां पे हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, आपका टीएनटी यूज करते हैं या हम अदर एक्सप्लोजिव यूज करते हैं और ओर्स को ब्लास्ट करते हैं, तो उसमें बड़े बड़े ब्लॉक्स, चंक्स तो ओर्स के टूटते ही हैं। बहुत ही माइन्यूट स्मॉलर साइज के, माइक्रोन साइज के भी आपके पार्टिकल्स, हैवी मेटल्स एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये फंक्शन करते हैं। दूसरा जो आपका बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगी है, जब इनका रिप्रोडक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, वो स्पोर्स रिलीज करते हैं, फंगल स्पोर्स रिलीज करते हैं। अब ये जो स्पोर्स है ये भी क्या आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, ये भी क्या है, एक लंग इरिटेंट है, ये लोगों में इन्फेक्शन कॉज करता है। इसी तरीके से जो बहुत सारे हमारे प्लांट्स हैं, अपने राइस है, व्हीट है या अदर बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं, वो क्या है, वो एयर के द्वारा पॉलिनेशन उनका होता है। क्योंकि उनका पॉलिनेशन एयर के द्वारा हो रहा है और कोई पॉलिनेटर के कारण नहीं हो रहा है, तो इनॉर्मस अमाउंट में क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं ह्यूज क्वांटिटीज में, ताकि पॉलिनेशन उनका क्या हो जाए, पॉलिनेशन रेट हाई रहे, जो उनका जर्मिनेशन है वो इम्ब्रियो का, वो प्रॉपर्ली उनका जर्मिनेशन हो जाए। तो इसलिए वो इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी क्या है, लंग इरिटेंट, क्योंकि इनका साइज भी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और वो एयर में सस्पेंड रहते हैं। अब जब कोई मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको
पॉलन ग्रेन से एलर्जी है तो उसके अंदर एक डिजीज हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हे फीवर, और सीवियर केसेस में लोगों का इससे डेथ भी हो जाता है ना। हे फीवर में क्या होगा, बहुत रनी नोज होने लगेगा और जो विंड पाइप है वो प्रॉपरली वो क्या होता है, वो स्टिक हो जाता है आपस में, जो हमारा विंड पाइप है, और जो पर्सन है उसे ब्रेथलेसनेस होगी, वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, है ना। एलर्जी होती है उसमें, फिर इम्यूनो सप्रेसेंट्स और बहुत कुछ दवा खिला के फिर उसको ठीक किया जाता है। अगर मान लो कोई पेशेंट है जो कि जिसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अस्थमा या इस टाइप की डिजीज है, और अगर वो इस टाइम में जब ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं प्लांट्स, उस समय अगर वो उस एरिया में प्रेजेंट हो तो क्या होगा, उससे उससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी या अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये तो नेचर ने बनाया, ये ह्यूमन मेड नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, एक नेचुरल सोर्स है आपका पॉल्यूशन का, है ना। अब बैक्टीरिया के स्पोर है, फंगल के स्पोर है, हमने तो उसे क्रिएट नहीं किया है ना। हमने अभी तक लाइफ को तो हमने नहीं ही अभी बनाया है हमने, है ना। तो इसलिए ये सारे जो आपके सोर्सेज हैं ये क्या है, नेचुरल सोर्स हैं पॉल्यूशन के। इसी तरीके से जो आपके रेडियो एक्टिव मेटल हैं, मिनरल्स, जो रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं, है ना, तो रेडियो एक्टिव मेटल्स भी क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी स्प्रेड करते हैं। जैसे मान लो कहीं पे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट हो तो वो क्या करेंगे, पूरे एरिया में रेडियो एक्टिविटी जो है आपकी स्प्रेड होगी। जो भी वहाँ प्लांट है या जो सॉइल है या जो वाटर उसके रेडियो एक्टिव मटेरियल के क्लोज है उसमें वो रेडियो एक्टिविटी स्प्रेड होगी, और जब भी हम उस वाटर को या फूड को कंज्यूम करेंगे तो हाई लेवल्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी से हम लोग क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड होंगे, और फिर ये जो रेडियो एक्टिव मेटल हैं ये कैंसर और म्यूटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं ये क्या है, ये आपका एक नेचुरल सोर्स है। आपने मे भी इनका नाम सुना होगा। रेडियो एक्टिविटी को किसने सर्च किया था, डिस्कवर किया था, जानते हैं नाम? कौन सी साइंटिस्ट थी? हाँ सुने सर नाम। बताओ। मैरी क्यूरी। हाँ, जो मैडम क्यूरी थी, मैरी क्यूरी, उन्होंने ही डिस्कवर किया था आपकी रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है। और वो अपने साथ क्या था कि वो एक रेडियम कैरी करती थी। उस समय रेडियम जो है, रेडियो एक्टिव मटेरियल का हार्मफुल इफेक्ट लोगों को मालूम नहीं था। वो हमेशा साथ वो अपने एक रेडियम का चंक कैरी करती थी ताकि लोगों को वो दिखा सके। आपकी अगर कोई चीज डिस्कवरी होगी तो आप सब लोगों को शो करोगे ना कि ये मैंने डिस्कवर किया है, और वो दिखाती थी कि रात नाइट टाइम में या अंधेरे में किस तरीके से रेडियम क्या होता है, ग्लो करता है ना। अपने थ्योरी को, अपने डिस्कवरी को सबको दिखाने के लिए हम लोग, आप लोगों ने बचपन में भी रेडियम वाले स्टिकर से खेला होगा, है ना। रेडियम वाला एक ग्लो स्टिकर आता था, है ना, जिससे हम लोग पहले छोटे अपने जब हम लोग छोटे थे उस समय खेलते थे। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि मैरी क्यूरी का जो डेथ हुआ है वो किसके कारण हुआ, रेडियम के कारण ही हुआ। क्योंकि जब उन्हें ये अवार्ड मिला, आपका ये जो नोबेल प्राइज मिला था, तो किसी ने उन्हें एक रेडियम का काफी बड़ा चंक जो है, समझो कि 2-3 kg के साइज का जो होता है ना, बड़ा एक साइज का, जैसे आपने मे बी हिमालयन सॉल्ट का लैंप देखा होगा, है ना, बड़ा साइज का एक लैंप होता है, उस शेप का उनको एक बड़ा सा उसने रेडियम का चंक दे दिया किसी उनके जानने वाले ने। और उस लैंप को, उस रेडियम के टुकड़े को वो एज ए नाइट लैंप यूज करने लगी, और उन्हें मालूम नहीं था कि ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये रेडियो एक्टिव डिके होता है, इसका अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रिलीज होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक म्यूटाजेनिक हो सकते हैं। और क्योंकि वो हायर लेवल्स ऑफ रेडियम से वो एक्सपोज हो गई, तो ड्यू टू ब्लड कैंसर, लिम्फेटिक कैंसर उनका क्या हो गया, लिम्फ नोड में भी शायद उनको कैंसर हो गया, और उनके कारण, उसके कारण उनका डेथ हो गया। तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, ये भी क्या एक नेचुरल सोर्स है, और इसके कारण जो पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। तो नेचुरल सोर्सेज में हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल भी आ सकते हैं। जैसे हमारे झारखंड में एक माइन है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके यूरेनियम की माइनिंग होती है। यूरेनियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसको हम लोग एज ए फ्यूल रॉड थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, या इनरिच यूरेनियम का यूज किया जाता है आपके साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, या न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूज किया जाता है ना। न्यूक्लियर जो आपके आर्मामेंट्स हैं उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इलीगल वे में ना बहुत सारे माइनर्स जो हैं वो ट्राइबल्स को, और जो किड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर जो लोग करते हैं, उनको वो इस माइन में भेजते हैं इलीगल वे से यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और उसके कारण वो जो ट्राइबल लोग हैं जो उस एरिया में, उस माइन के आसपास रहते हैं, तो उनमें देखा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कैंसर के केसेस इंक्रीज हो गए हैं, या उनके जो बेबीज
नेक्स्ट जनरेशन में बर्थ ले रहे हैं उनके अंदर क्या है, म्यूटेशन है, या उनका प्रॉपर बॉडी का डेवलपमेंट नहीं है, या प्रॉपर लिम्स या जो अदर ऑर्गन्स है उनका सही से डेवलपमेंट नहीं है। तो ये सब हो गए कुछ नेचुरल सोर्स। इसमें एक नेचुरल सोर्स और ऐड कर सकते हैं, वो है आपका फॉरेस्ट फायर, है ना। फॉरेस्ट फायर कई बार नेचुरल कंडीशंस में होता है, जैसे हमारे आपने न्यूज में सुना होगा कि हिल्स पे जो आपका हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ फॉरेस्ट फायर होता है। रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ बहुत ही एक्सट्रीम समर के टाइम क्या होता है, ड्राई वेदर कंडीशन होता है, और फॉरेस्ट फ्लोर पे जो फॉरेस्ट का बेस है वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्यूल प्रेजेंट होता है। फ्यूल मतलब क्या, ड्राई लीव्स प्रेजेंट होते हैं, लिटर प्रेजेंट होते हैं, या आपका जो पाइन वहाँ पे क्या है, उत्तराखंड और हिमाचल में आपको पाइन के फॉरेस्ट मिलेंगे, है ना। तो पाइन नीडल्स प्रेजेंट होते हैं, और पाइन नीडल्स जो है बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। तो आपने में भी देखा होगा ये सब जो डिस्कवरी नाइट जो डिफरेंट चैनल है उसमें सर्वाइवल स्किल, जो ये बियर ग्रिल्स और भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते हैं सर्वाइवल स्किल्स वाले, वो क्या करते हैं, दो वुड को आपस में फ्रिक्शन करके फायर प्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने, कि दो वुड का टुकड़ा लिया और वो फायर प्रोड्यूस करते हैं फ्रिक्शन के थ्रू। तो ऐसा क्या होता है, नेचुरल वे में भी कई बार होता है। जैसे आपके हिल एरियाज में विंड जब ब्लो करती है, तो दो मान लीजिए आसपास में कोई ट्री है जो कि बिल्कुल ड्राई है, और उसमें क्या होगा, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, और उसके कारण आपका क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और पहले ही से इनफ मटेरियल प्रेजेंट है, ड्राई आपका लीव्स प्रेजेंट है बेस में, उसके कारण क्या होगा, पूरे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर होगा। और ये भी फॉरेस्ट फायर से क्या होगा, इनॉर्मस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे। तो ये भी क्या है, एक नेचुरल सोर्स है पॉल्यूशन का। अब आते हैं मैन मेड सोर्सेज पे। जो फॉरेस्ट फायर है ना, नेचुरल सोर्स भी है और ये मैन मेड सोर्स भी है। कई बार ह्यूमंस जो है वो इंटेंशनली क्या करते हैं, फॉरेस्ट फायर लगा देते हैं, फॉरेस्ट में वो फायर कर देते हैं, या केयरलेस के कारण अपने केयरलेसनेस के कारण भी फॉरेस्ट फायर हो जाता है। जैसे मान लो कि कुछ लोग गए फॉरेस्ट में कैंपिंग करने के लिए, उन्होंने फॉरेस्ट में अपना कुछ फूड कुक किया, और प्रॉपरली जो उन्होंने वहां फायर जलाया था उसको प्रॉपरली उन्होंने बुझाया नहीं, है ना। नॉर्मली क्या कहा जाता है कि फॉरेस्ट में अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा कुकिंग और ऐसा कैंपिंग ना करें, लेकिन उसका भी प्रॉपर कंडीशन है, किस तरीके से अगर आपको फायर भी जलानी है तो किस तरीके से आपको चलाना है, एक पिट बना के आपको वहां फायर लगानी है, और सारा जो भी आसपास में ग्रास है या जो भी आपका फ्यूल टाइप का मटेरियल उसको रिमूव करना है, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो उसको फिर फिल कर देना उसको, कि फायर जो है वो बुझ जाए बिल्कुल, तभी हमको उस एरिया को छोड़ना है। ऐसे तो फॉरेस्ट में ये इलीगल है, अगर आप फॉरेस्ट में जाके हमारे कंट्री में करते हो तो फाइन भी लग सकता है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग अगर आपको देख लेते हैं तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार केयरलेसनेस में भी, जैसे जो आपके लोकल आसपास के विलेजेस के जो चरवाहे टाइप के लोग होते हैं, पेस्टोरल पीपुल जो होते हैं, वो अपने एनिमल्स को लेके जाते हैं फॉरेस्ट में ग्रेजिंग करवाने के लिए, और कभी उन्होंने अपना सिगरेट या जलता हुआ जो बीड़ी होता है वो उन्होंने वहां पे डंप कर दिया प्रॉपरली, मतलब एक्सटिंग्विश किए बिना। तो उसके कारण क्या होगा कि पूरे फॉरेस्ट में उसके कारण फॉरेस्ट फायर हो सकती है। तो फॉरेस्ट फायर क्या है, नेचुरल भी होता है, लेकिन मोस्टली वो क्या होता है, ह्यूमन क्रिएटेड होता है, मैन मेड होता है। तो अब हम देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जो आपने लिखा है उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं। पहला तो आप इसमें लिख सकते हो वेहिकुलर एग्जॉस्ट, पहला लिख लो वेहिकुलर एग्जॉस्ट, व्हीकल से वेहिकुलर, VEHICULAR, वेहिकुलर एग्जॉस्ट, वेहिकुलर एग्जॉस्ट, VEHICULAR, वेहिकुलर एग्जॉस्ट, VEHICULAR, वेहिकुलर एग्जॉस्ट, VEHICULAR, वेहिकुलर एग्जॉस्ट। अब जितने हम व्हीकल्स यूज करते हैं, जो भी अपना टू व्हीलर है ना, मोटरसाइकिल्स हैं या स्कूटीज हैं या कार्स हैं या SUVs हैं, है ना, या हमारा ट्रक्स हैं, या जितने भी पहले डीजल इंजन हम लोग यूज करते थे या बोट्स यूज करते थे, तो मोस्टली ये किस पे रन करती है, फॉसिल फ्यूल पे रन करती है, पेट्रोल डीजल पे ही ये रन करती है। और जब ये पेट्रोल डीजल हम लोग यूज करते हैं तो ये इनॉर्मस अमाउंट में आपकी गैसेस रिलीज करती हैं, जो दो गैसेस हैं जो कि हार्मफुल हैं। एक तो आपका कार्बन मोनो, अगर प्रॉपर आपने अपने इंजन का ट्यून अप नहीं करा रखा है या प्रॉपर उसमें एयर फिल्टर आपने चेंज नहीं करवा रखे हैं प्रॉपरली, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगा। दूसरी और कौन सी गैसेस रिलीज होंगी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होंगे, उसके साथ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिलीज होंगे। अभी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है वो एसिड रेन कॉज करता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो एक और एयर पॉल्यूशन कॉज करता है, जिसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं।
या जिसको हम लोग स्मॉग बोलते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली में क्या होता है, स्मॉग विंटर के टाइम में, जब स्टार्ट होता है विंटर आपके दिसंबर या नवंबर दिसंबर में, ये स्मॉग का प्रॉब्लम दिल्ली में देखने को मिलता है। तो आपने सुना होगा कि वहाँ पे जो पंजाब हरियाणा में जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर वेस्ट को बर्न करते हैं, उसके कारण दिल्ली में स्मॉग होता है। उनका भी कंट्रीब्यूशन है जो एग्रीकल्चर वेस्ट बर्न करे, साथ में दिल्ली का अपना खुद का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे व्हीकुलर एग्जॉस्ट जो व्हीकल्स हैं वो प्रेजेंट है, और दिल्ली में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी प्रेजेंट है जो आपकी इन गैसेस को प्रोड्यूस करती है। तो ये एक सोर्स हो गया व्हीकुलर एग्जॉस्ट, है ना। अब दूसरा सोर्स आप लिख लो फ्यूम्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, या नॉर्मल इंडस्ट्रीज लिख लो, इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर भी निकलता है, वो भी पॉल्यूशन करता है। जो आपके फ्यूम्स निकलते हैं, जो स्मोक निकलता है, उससे भी पॉल्यूशन होता है। पहला हो गया व्हीकल्स, व्हीकुलर एग्जॉस्ट, सेकंड हो गया हमारा इंडस्ट्रीज, थर्ड आप ऐड कर सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्ड कर सकते हो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एग्रोकेमिकल्स। एग्रीकल्चर मतलब एग्रोकेमिकल्स ही मोस्टली हार्मफुल हैं। देखो एग्रीकल्चर तो जरूरी है हमारे लिए ना, सारे ह्यूमन बीइंग्स, हमारे सर्वाइवल के लिए तो एग्रीकल्चर चाहिए, इतना ज्यादा हमारा पॉपुलेशन है, सबको ब्रेड चाहिए, सबके लिए हमें क्लोथिंग के लिए कॉटन चाहिए या अदर फाइबर्स चाहिए, तो एग्रीकल्चर चाहिए। या जो हमारे एनिमल्स हैं उनको फीड करने के लिए फॉडर चाहिए, वो कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। जब हम एग्रीकल्चर बोले तो ब्रॉडली उसमें और भी जो टाइप के एनिमल रियरिंग है, जैसे पीसी कल्चर है और सब जो कल्चर है, एपीकल्चर है ना, वो सब भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर में जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, अभी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हमने हाइब्रिड सीड्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, हाइब्रिड एनिमल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। एनिमल्स की भी नई ब्रीड्स बना ली गई, प्लांट्स की भी नई ब्रीड्स हमने डेवलप कर ली, जिसमें जो बेटर, जो हमें दो प्रॉपर्टी लगा दो प्लांट्स में, उनको आपस में ब्रीड करके हमने अपना नया प्लांट बना लिया हाई यील्डिंग वैरायटी के। तो अब ये जो हाइब्रिड हमने चीज बनाए, जो भी प्लांट्स बनाए, एनिमल्स बनाए, तो क्योंकि ये नेचुरल इवोल्यूशन से ये नहीं डेवलप हुए हैं, तो इनमें, इनके अंदर एडेप्टेशन नहीं है, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं। ये जितनी स्पीसीज है ना वो बहुत ज्यादा वीक होती है ना। अब ये क्योंकि वीक है तो इनका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। जो भी प्लांट अगर आपने बनाए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आपने लगा लिए, तो आपको ज्यादा उनको इरिगेशन देना होगा, ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड देना होगा। इंसेक्टिसाइड नहीं दोगे तो वो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से सारा क्रॉप फेल कर जाएगा, है ना। पेस्टिसाइड से भी बचाना होगा, ज्यादा फर्टिलाइजर देना होगा, थोड़ा भी वेदर चेंज होगा या प्रॉपर हमने इरिगेशन नहीं किया तो हमारा क्रॉप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप हाइब्रिड एनिमल्स को रखते हैं, जैसे कोई हाइब्रिड आपने काऊ रख ली या आपने कुछ वैसा हाइब्रिड दूसरा हमने जानवर रखा, तो उसका आपको ज्यादा केयर करना पड़ेगा। जैसे समर में आपको उनके लिए पूरा एसी वेसी भी लगा के रखना होगा, या आपको पूरा कूलर का सिस्टम लगाना होगा। जो महंगी महंगी गाय आती हैं जो लोग रखते हैं, बहुत उनका केयर करना पड़ता है, या उनमें डिजीज भी बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि उसको हमने हाइब्रिड टेक्निक से बनाया है, तो वो क्या है, वो प्रॉपर नहीं हमारे कंडीशंस के लिए सूटेड है, तो ज्यादा आपको केयर करना पड़ता है। मेनली मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा था। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज के जब आप सीड यूज करोगे तो ज्यादा इंसेक्टिसाइड, ज्यादा पेस्टिसाइड हम यूज करेंगे। जब ये हम ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो रन ऑफ के थ्रू ये सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जाके हमारे वाटर बॉडी में ऐड हो जाएंगे, वाटर कंटेमिनेशन करेंगे, वाटर पॉल्यूशन कॉज करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन कॉज करेंगे, और फिर ये फूड के थ्रू हमारे बॉडी में आके स्टोर हो जाएंगे। जैसे आपने अगर मिल्क कंज्यूम किया, मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम किया, या वेजिटेबल्स कंज्यूम किया, या सीरियल्स कंज्यूम किया जिनके अंदर ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, वो जब हम फूड कंज्यूम करेंगे ना, तो जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको बॉडी हमारा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जो जो पार्ट है फूड का जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। अब हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, इसमें आपके हार्मफुल केमिकल्स भी होंगे। ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है ये किसी यूज के तो है नहीं, तो ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेस्ट दो टाइप की कैटेगरी में हम वेस्ट को डिवाइड करते हैं। एक है आपका फैट सॉल्युबल वेस्ट और दूसरा है वाटर सॉल्युबल वेस्ट। तो जो वाटर सॉल्युबल वेस्ट है ना, वो बॉडी से इजीली क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिन के थ्रू, एक्सक्रीटा के थ्रू, स्वेट के थ्रू, या इवन टीयर्स के थ्रू। जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट है वो सब एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन जो फैट सॉल्युबल वेस्ट है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है। अगर मान लीजिए जो हमने अपने बचपन से आज तक खाया है फूड, उसमें जितने भी वैसे वेस्ट होंगे जो कि फैट सॉल्युबल वेस्ट रहे होंगे, वो सारे हमारे बॉडी में क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे।
अभी तक के लिए, या कोई एक पर्सन अपने लाइफ टाइम में जितना भी फूड कंज्यूम करता है उसके जितने भी फैट सॉल्युबल वेस्ट होते हैं वो उसी के बॉडी में स्टोर रहते हैं जब तक कि उसका डेथ नहीं हो जाता है। और जब डेथ हो जाएगा, उसका लास्ट में क्रिमेशन होगा या उसको बरी कर दिया जाएगा, उसके बाद ही जब डिकम्पोजिशन होगा माइक्रोब्स के द्वारा, या जब हम इंसनरेट करेंगे, या जब बॉडी का उसका डिस्ट्रक्शन होगा, तभी ये जो एलिमेंट्स है रिलीज होते हैं। इवन जितने भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं ना, कुछ मेडिसिन हमारे क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, तो जाके हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं सबकटेनियस फैट में। या जितने हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खाएंगे, बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं वो हमारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल है। तो ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हेवी मेटल जाके हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएंगे सबकटेनियस फैट में, या वैसे पार्ट्स में जहां फैट ज्यादा प्रेजेंट होता है जैसे थाइज में या स्टमक के आसपास, वहां जाके वो क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ऐसे नॉर्मल कंसंट्रेशन में ये हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अब एक लाइफ टाइम में, जो हमारा लाइफ टाइम है कई डिकेड्स का, 10-20 ईयर्स 30 ईयर्स में, जब हम वही फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा। जैसे मान लो आज मैंने कोई फ्रूट खाया, एक एप्पल खाया, और उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड है, जैसे मान लो डीडीटी है, और उसका कंसंट्रेशन क्या है, 1 ppm है। एक 1 ppm से मुझे, क्योंकि हम जो ह्यूमंस, हमारा बॉडी साइज बड़ा है, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा है, वो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है। लेकिन अपने लाइफ टाइम में मान लो कि मैंने मान लो 10,000 या 1 लाख एप्पल्स खाए, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, टाइम टू टाइम वो इंक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा कंसंट्रेशन हो जाएगा उस डीडीटी का कि वो मेरे बॉडी फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये हैवी मेटल्स और ऐसे टॉक्सिक केमिकल का कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो जो हमारी किडनी है या जो लीवर है, जो वेस्ट को रिमूव करती है, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, और इस कारण से कई बार क्या होगा, किडनी और लीवर फेलियर हो जाता है। आप देखोगे बहुत सारे लोगों में, अपने सोसाइटी में ही देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ना तो सिगरेट कंज्यूम करते हैं, ना तो अल्कोहल्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उन्हें भी किडनी और लीवर का प्रॉब्लम होने लगा है, या किडनी फेलियर हो रहा है। रीजन क्या है, जो हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो उसमें बहुत ज्यादा क्या है, हैवी मेटल्स प्रेजेंट है, इंसेक्टिसाइड प्रेजेंट है, पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, और इस कारण से क्या हो रहा है, हमारा फूड कंटेमिनेटेड है, ये सारे केमिकल जाके हमारे बॉडी में स्टोर हो जा रहे हैं। जो हमारा किडनी है या जो हमारे लीवर है, वो रिमूव नहीं कर पा रहे हैं इस वेस्ट को, जो किडनी है हमारा, और इसके कारण क्या हो रहा है, वो जो किडनी है वो फेल कर जाएगा, और फिर जो पर्सन है उसका डेथ हो जाएगा, अगर प्रॉपर उसका केयर, ट्रांसप्लांट ना हो, या प्रॉपर जो डायलिसिस है, अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, तो उसके कारण उसका डेथ हो जाएगा। या बहुत बार ये जो केमिकल्स हैं, ये बॉडी के अंदर कैंसर और म्यूटेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। कैंसर क्या है, कैंसर क्या है कि जब किसी सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे, तो उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। ब्लड सेल्स का अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, ब्लड कैंसर बोलेंगे। जैसे लंग कैंसर बोलते हैं, लंग का कोई सेल है या टिश्यू है, उसका अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगा, तो उसको लंग कैंसर बोलेंगे। इसी तरीके से जो हमारा बोन मैरो है, उसमें भी बोन मैरो का भी कैंसर होता है, और भी डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं। तो जनरली कोई भी जो हमारे बॉडी में सेल है ना, उसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजीन। अब ये जो जीन है, ये सेल को बताती है कि तुम्हें कब डिवीजन, सेल डिवीजन को चेक करना है। आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, कि सेल कैसे डिवाइड करता है ना, बाइनरी फ्यूजन। अब अमीबा में पढ़ा होगा कि डिवाइड होता है सेल एक से दूसरे में ना, मदर जो सेल है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है। तो इस टाइप का ही सेल डिवीजन हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में हो रहा होता है। तो ये जो सेल्स है, इनके अंदर ये जीन होती है जो कि चेक करती है, उसे मालूम होता है, उस जीन के पास इंफॉर्मेशन है। Sir, your सर voice is आपका not माइक audible, sir. सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, तो ये जो कार्सिनोजेंस है ना, जब हम इन कार्सिनोजेंस के कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा, ये जो ऑन्कोजीन है हमारा, उसकी जो प्रॉपर्टी है सेल डिवीजन की, या जो उसके पास इंफॉर्मेशन था कि सेल डिवीजन को कब स्टॉप करना है, ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उसकी लूज हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, सेल्स का अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगा। अब जब अनकंट्रोल ग्रोथ होगा बॉडी में सेल्स का, तो सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए आपका, उसको भी ब्लड की सप्लाई चाहिए, उसको भी अदर ऑक्सीजन, सब कुछ चाहिए। तो ये जब ग्रोथ करेंगे, ये जो सेल्स है, क्योंकि ये अनवांटेड सेल्स हैं,
क्योंकि अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो है ये ब्लड सप्लाई ज्यादा यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा यूज कर लेंगे, जो कि दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के लिए है ना। तो इसके कारण क्या होगा, जो दूसरे ऑर्गन्स है वो डिप्राइव फील करने लगेंगे, या जो हमारा हर्ट है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर होने लगेगा, और इसके कारण जो जिसे ये जिस पर्सन के अंदर ये कैंसर होगा, तो फिर उसकी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस होने लगती है। इसलिए हमारे यहाँ ट्रीटमेंट है, आपने देखा होगा कि केमिकल्स, केमोथेरेपी होता है या रेडिएशन थेरेपी होता है ना। जो केमोथेरेपी में हम केमिकल्स के थ्रू इन सेल्स को किल कर देते हैं, रेडियोथेरेपी में हम रेडिएशन का यूज करके जो आपके कैंसरस सेल्स हैं उनको किल करते हैं। तो हमारा जो फूड है ना, हमें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो किस टाइप का हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, या उसके अंदर वैसे कुछ केमिकल्स तो नहीं है। अगर अभी आप फूड अगर खरीदते हो, जो भी हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, तो क्योंकि ये जितने कंपनीज ये फूड बना रहे हैं ना, अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए ही ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स ऐड कर देते हैं जो कि फ्लेवर और टेस्ट तो इन्हांस कर देते हैं, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जैसे आप देखोगे कि जो पहले के टाइम था ना, ये पाम ऑयल का आपने नाम सुना होगा। पाम ऑयल पहले सिर्फ आपका ये सोप, बॉडी सोप बनाने के लिए यूज होता था, लेकिन अब आप देखोगे जितने भी आपके टॉप के कंपनीज है, जैसे ब्रिटानिया है, नेस्ले है, या अदर जितनी कंपनीज है जो कन्फेक्शनरीज बनाती है, आप पेप्सी बनाने वाली पेप्सिको है, या लेज वाली जो कंपनी है, या कोको कोला, जितनी भी कंपनी है, ये लोग क्या कर रही हैं कि जो भी आपका कन्फेक्शनरी है, जो भी बिस्किट्स आप खाते हैं, चिप्स खाते हैं, अगर आप उसके पैकेज को देखोगे, ऐसे एक हैबिट डेवलप करना चाहिए कि जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो उसके इंग्रेडिएंट्स को आप जरूर देखो। तो उसमें आप देखोगे तो देखोगे कि वो क्या यूज कर रहे हैं, पाम ऑयल का यूज कर रहे हैं। पहले वो पाम ऑयल का यूज नहीं करते थे, लेकिन ये जो पाम ऑयल है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, हार्मफुल टाइप का ऑयल है। तो जनरली हमें कोशिश करना चाहिए कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करें, ना कंज्यूम करें। एक तो ये प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारे आप देखोगे, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग या कोई जूस पीते हैं, तो उसमें देखोगे उसमें लिखा होगा क्या, नेचुरल आइडेंटिकल सब्सटेंसेस। नेचुरल चीज वो नहीं ऐड कर रहे उसमें, वो नेचुरल फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, और वो जो फ्लेवर है वो क्या है, एक टाइप का केमिकल है, वो नेचर में एज सच एग्जिस्ट नहीं होता है, वो हमने लैब्स में क्रिएट किया है। और जो भी लैब्स में हम लोग क्रिएट करते हैं वो प्रॉपरली हमारे बॉडी के साथ फंक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि बॉडी तो एक नेचर का ही पार्ट है ना। हम लोग ऑर्गेनिक चीज जो कंज्यूम कर सकते हो, जो नेचर में बनता है, वो हमारे बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन जो आर्टिफिशियल चीज है वो कभी ना कभी जाके प्रॉब्लम कॉज करेगा ही। तो उसमें बहुत सारा आप देखोगे इमल्सिफायर ऐड किया जाता है जो कि आर्टिफिशियल है, या आपका जो कलर्स यूज किया जाता है, तो उसके कंजम्पशन को हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करना है, कि उस टाइप के फूड को हम लोग कम से कम कंज्यूम करें, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक भी हो सकते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, अच्छा, तो ये फूड में भी क्या है, बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन है, और म्यूटेशन भी कॉज करते हैं कुछ आपके केमिकल्स, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस बोलते हैं। और म्यूटेशन होने से क्या होगा कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, और जब जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आएंगे तो आने वाली जो प्रोजेनी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो क्रिपल्ड पैदा होगी। जैसे म्यूटेशन जो है वो केमिकल्स के साथ भी हो सकती है, जैसे हमने कुछ फूड कंज्यूम कर लिया और उसके कारण क्या होगा, हमारे डीएनए में अगर चेंजेस हो जाते हैं तो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या होगी, क्रिपल्ड होगी। जैसे अभी एक केस था कि केरला में एक विलेज था, वहां पे वो कैशू का प्लांटेशन करते थे, ठीक है ना। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वहां की एजेंसी होगी, लोकल बॉडी जो होगी, उन्होंने क्या किया, पूरे एरिया में पेस्टिसाइड स्प्रेड करना था, तो एयरक्राफ्ट से उन्होंने क्या कर दिया, पेस्टिसाइड स्प्रेड कर दिया। अब ये जो पेस्टिसाइड था ये बहुत ही ज्यादा क्या टॉक्सिक और बहुत ही ज्यादा पोटेंट था। उसके बोटल्स पे ऐसा लिखा था कि अगर कोई फार्मर इंडिविजुअली अपने फार्म लैंड पे या जहाँ पे वो कैश्यू में ये इसे डाल रहा है, तो उसे जहाँ पे वो उसे स्प्रेड कर रहा है, स्प्रे करता है, तो उसको 48 आवर्स के लिए फील्ड में नहीं जाना, इतना ज्यादा वो क्या था, वो टॉक्सिक टाइप का पेस्टिसाइड था। तो गवर्नमेंट या जिसने भी वो ऐसा काम किया, जो भी वहाँ की बॉडी थी जिसने पूरे में स्प्रेड किया, तो पूरा इन्वायरमेंट कंटेमिनेट कर दिया। जो भी वहाँ सॉइल है, जो भी वाटर है, जितने प्लांट्स है, सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, कंटेमिनेट, पूरा कंटेमिनेटेड हो जाएंगे। अब जो वहाँ पे ग्रासेज है उसके अंदर भी वो पेस्टिसाइड प्रेजेंट है। अब मान लो वहाँ पे काऊ जो उस ग्रास को खाएगी, उसके बॉडी में वो पेस्टिसाइड चला जाएगा, उसका जो आपका ये जो है मिल्क में वो पेस्टिसाइड आएगा, वहाँ जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आप खाओगे उसके अंदर भी आपको वो पेस्टिसाइड मिलेगा, इवन मदर मिल्क से बेबी में भी वो पेस्टिसाइड जाएगा।
तो इसके कारण क्या देखा गया कि आगे में जब जनरेशन दूसरे वहां पे बेबीज का बर्थ हुआ तो उनके अंदर स्कल का ही डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो ये किसके कारण हुआ? म्यूटेशन के कारण हुआ। जो वहां पे वर्कर्स काम करते थे उनके डीएनए में चेंजेस आ गए। और डीएनए ही क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है कि किस टाइप से हमारा जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके अंदर कितने लिम्स होने चाहिए, कैसे ईयर्स होने चाहिए, कैसा स्किन टोन होना चाहिए, कैसा प्यूपिल होना चाहिए, वो सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर होता है। अब ये इंफॉर्मेशन ही किसी तरीके से अगर डिलीट हो जाए तो प्रॉपर फीटस का डेवलपमेंट नहीं होगा। जो बेबी बॉर्न करेगा प्रॉपर उसका बॉडी ऑर्गन्स नहीं होंगे, प्रॉपर हार्ट नहीं डेवलप हुआ वो, तो इस टाइप की इश्यूज देखने को मिलती है। जैसा आपने सुना होगा कि जब ये आपका हिरोशिमा नागासाकी पे बम ड्रॉप किया था अमेरिका ने, तो वहाँ कई जनरेशन्स तक, इवन अभी तक भी वहाँ जो बेबी पैदा लेते तो उनमें किसी ना किसी तरह का प्रॉब्लम होता है ना। उनमें प्रॉपर लिम्ब का डेवलपमेंट नहीं होता या कोई ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं डेवलप होते हैं। बेबी जो वहाँ पैदा होते हैं वो क्रिपल्ड या हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। तो म्यूटेशन ये जो है ये हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है, या जो ये कार्सिनोजेंस है वो हमारे लिए हार्मफुल है। ऐसे तो हम लोग ऐसा एक्ट करते कि हम लोग क्या है? ओनर्स हैं, हम ही लोग क्या है? सबसे सुपीरियर हैं। लेकिन इसका अब हम इल इम्पैक्ट भी देख रहे हैं, है ना। ह्यूमंस के अंदर बहुत ज्यादा आप देखोगे कि रिसेंट ईयर्स में कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा राइज कर चुके हैं, या जो किडनी रीनल फेलियर के केसेस हैं वो राइज कर चुके हैं, या जो बेबीज पैदा हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रिपल्ड पैदा हो रहे हैं, या बहुत बार प्रॉपर बेबी का डेवलपमेंट नहीं होता है, मिसकैरेज हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं। बहुत सारे और भी डिजीजेज हैं, जैसे कि आपको मैंने आगे पढ़ाऊंगा, जैसे मिनामाटा डिजीज है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, फिर इटाई इटाई डिजीज है, फिर आपका और एक डिजीज है आर्सेनिकोसिस है, फ्लूरोसिस है। बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कि हमारी एक्टिविटीज के कारण, जो हमने अपने इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट किया, हम सोचते थे कि हमें इससे कोई इल इफेक्ट नहीं होगा, अब उसके कारण हम लोग पे कर रहे हैं काफी ह्यूज सम। इवन जो अभी आप देख रहे हो ये जो कोरोना क्राइसिस जो है, ये क्या है? एक टाइप की जूनोटिक डिजीज है। और बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसको आज तक हम लोग नहीं ट्रीट कर पाए। कोरोना को तो चलो हमने अपना इंजेक्शन बना लिया और वो 95% तक वो मतलब ठीक है। लेकिन बहुत सारी जो डिजीज स्प्रेड हुई है ना, वो किससे स्प्रेड हुई है? एनिमल से स्प्रेड हुई है। हमें वाइल्ड एनिमल्स के जो हैं, हमें ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में नहीं जाना था, लेकिन बहुत लोग हमने क्या किया कि पूरा हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया वाइल्ड एनिमल्स का। अब वाइल्ड एनिमल्स और हमारा क्या है? बहुत ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन है, या जो वैसी स्पीसीज जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं उनका इंटरेक्शन वाइल्ड एनिमल्स के साथ ज्यादा है। या कुछ कंट्रीज में क्या होता है ना कि वाइल्ड एनिमल्स को बहुत ज्यादा लोग एज ए डेलिकेसी कंज्यूम करते हैं। जैसे चाइना में है बुश, जो वेट मार्केट, आपने सुना होगा ये टर्म, काफी ज्यादा सुना होगा। वहां पे वेट मार्केट में सारे वाइल्ड एनिमल्स को, सारे एनिमल्स को वो किल करके खा जाते हैं। इवन हमारे इंडिया में भी है बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में, जो नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट है और इवन जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास है, तो वहां पे बुश मीट लोग प्रिफर करते हैं, कंज्यूम करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो एनिमल की डिजीजेज हैं वो ह्यूमंस में ट्रांसफर होने का खतरा होता है। और क्योंकि इन डिजीज को हमने स्टडी नहीं किया, इनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनके जो डिजीज कॉजिंग एजेंट कॉज कर रहे हैं उनके नेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके कारण ये डिजीज जो है काफी डेथ कॉज करेगी, है ना। और इसको चेक करना इजी नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो डिजीज है ना, बहुत जल्दी म्यूटेशन अपने अंदर, बहुत जल्दी वो एडेप्टेशन कर लेती है। जैसे कोरोना में ही आपने अभी नया सुना होगा कि अलग अलग कंटिनेंट, अलग अलग एरिया में वो नया नया स्ट्रेन आने लगा, है ना। ब्रिटेन में, यूरोप में अपना अलग स्ट्रेन आ गया, अफ्रीका में एक अलग स्ट्रेन हो गया, है ना। तो ये सब किसके कारण है? हम लोग बहुत ज्यादा हमने क्या किया? नेचर के साथ डिग्रेडेशन कॉज किया, नेचर का बहुत ज्यादा हमने नेचर को डिग्रेड, ऐसा हो रहा है। अभी बहुत सारे जो आपके ये हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, वो बोल रहे हैं कि हमें अभी भी क्या होना चाहिए? जाग जाना चाहिए, और ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो एनिमल्स हैं इनको हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। कि अगर हम फिर इनको ज्यादा हार्म पहुंचाएंगे तो जनरली क्या होता है ना कि अगर किसी आप वाइल्ड एनिमल जो है, अगर आप उनको ज्यादा हार्म पहुंचाओगे तो इसके जो डिजीज कॉजिंग वाले जो होस्ट है ना, वो अपने जो डिजीज कॉजिंग वाले जो पैथोजन है वो अपने होस्ट को चेंज कर देंगे। जैसे आपका ये जो कोरोना में हुआ कि उसका मेनली जो होस्ट था वो क्या था? आपका वो फ्रूट वाले जो बड़े बड़े साइज के बैट्स होते हैं वो था उसका आपका होस्ट। लेकिन क्योंकि बहुत लोग वहां पे बैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस पैथोजन ने अपना होस्ट चेंज करके ह्यूमंस को होस्ट बना लिया,
है ना। तो और भी बहुत सारी जूनोटिक डिजीज है, आपने नाम में भी सुना होगा, एंथ्रेक्स का नाम सुना होगा, सार्स का नाम सुना होगा, है ना। तो या कोरोना वायरस पहले ही से हम लोग जानते थे, अभी जो ये कोरोना आया है इसको हम लोग कोविड बोलते हैं। ये कोरोना का एक एडवांस्ड स्टेज है। कोरोना वायरस के बारे में पहले से मालूम था, लेकिन जो कोविड है ये दूसरा उसका एक एडवांस फॉर्म है, म्यूटेशन हुआ है उसके अंदर। तो ये सब जूनोटिक डिजीज जो है वो भी स्प्रेड हो रही है। मेन रीजन क्या है, ह्यूमन का जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है उसके कारण ऐसा हो रहा है ना। तो हमें अपने आप को वेल अवेयर करना है और अपने एक्शंस वैसे ही लेने हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट ना डिग्रेड हो, सस्टेनेबल वे में हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी को, जो आज तक अभी तक जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. अच्छा, इसके लिए एक बुक है कौशिक एंड कौशिक की, इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, या लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल है, या इवन आप लोग इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज कौशिक एंड कौशिक, उसका पीडीएफ इजीली अवेलेबल है। नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा, मैं भी कुछ दिन, एक दो दिन में, है ना। और जो भी लेक्चर्स है उसके पीपीटी आपको मिल जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है, ज्यादा मार्क्स, अच्छा मार्क्स चाहिए, तो फिर आप बुक्स को कंसल्ट कीजिए, नहीं तो मेरे पीपीटीज इनफ है। जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनो और उसको नोट डाउन कर लो। सिलेबस भी कम है, ज्यादा सिलेबस भी नहीं है, तो रिवाइज भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इस पेपर के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन क्लास में अटेंटिव रहना है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। ओके और कोई क्वेरी किसी यस को? नो कोई- नो सर। एक No, sir. और- एक मिनट। Okay, you may leave now.